بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئیکشن ود دعا بٹ کے معزز دوستو، میں ہوں دعا بٹ۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب روائی چینل میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ریئیکشن ود دعا بٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بھیڑ کے روپ میں ایک بھیڑیے کی ایسی خوفناک داستان جو بظاہر اپنے گاؤں کا رحم دل اور مظلوموں کا حامی چودھری تھا، لیکن سورج کے منہ چھپاتے ہی وہ آدم خور انسان کا روپ دہار لیتا۔ لیکن قدرت کی طرف سے اس کے لیے انتظام ہو چکا تھا، ایک ایسے خبیث شخص کی کہانی جو اپنے ظاہرہ روپ میں بالکل مختلف شخصیت کا مالک تھا۔ ایک ضروری اعلان سنیے، چودھری خیر دین کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا نماز جنازہ آج صبح 9 بجے ادا کیا جائے گا۔ گاؤں کی مرکزی مسجد سے جو ہی ایک اعلان نشر ہوا تو ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ چودھری خیر دین کا صرف نام خیر دین نہیں تھا، بلکہ وہ گاؤں کے ہر گھر کے لیے خیر تھا۔ بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا، محتاجوں کی حاجتیں پوری کرنا، غربا اور یتیم بچوں کی شادیاں کرانا اس کی زندگی کا مشن رہا۔ کچھ سال پہلے جب چودھری کے مزار احمد بخش کی نوجوان بیٹی رخسانہ کو ڈاکوں نے اغوا کیا تو چودھری خیر دین کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ احمد بخش کے ساتھ قریبی جنگل کا چپا چپا چھان مارا اور جب ہفتہ بعد رخسانہ کی لٹی پٹی لاش گاؤں کے چوراہے پر پڑی ملی تو گاؤں میں قہر مچ گیا۔ چودھری خیر دین نے تدفین سے لے کر جالسویں تک تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے۔ رخسانہ کی تدفین کے روز ہی چودھری خیر دین کے نوکر پھلو شاہ کا بھی پراسرار قتل ہو گیا۔ ابھی رخسانہ کے 40ویں کو چند دن ہی گزرے تھے کہ گاؤں کی الڑ اور شوخ عمرانہ بھی اغوا اور پھر قتل ہو گئے، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے مسلسل ایک ساتھ ہی واقعات رونما ہوئے اور ہر واقعے کے بعد چودھری خیر دین کا کوئی نہ کوئی نوکر بھی قتل ہو جاتا۔ گاؤں میں مشہور یہی ہو گیا کہ ڈاکوؤں کے ساتھ چودھری خیر دین کے نوکر ضرور شامل تھے اور پھر ڈاکو بعد میں ان کو قتل کر دیتے تھے۔ ان تمام واقعات میں چودھری خیر دین مکمل طور پر گاؤں کے دکھ درد میں برابر کا شریک رہا اور مسلسل گاؤں والوں کے ساتھ ڈاکوؤں کی تلاش میں رہنے کی وجہ سے چودھری سخت بیمار ہو گیا، اور پھر آج چودھری کے فوت ہونے کی خبر سے گاؤں میں قہرم سا مچ گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر بٹا آنسوؤں سے تر تھا۔ آج گاؤں کا مسیحا سب کو تنہا کر کے جا رہا تھا، اور پھر جب چودھری کی میت کو غسل دیا گیا تو غسل دینے والے ہاتھ تھم گئے۔ سب کے چہرے حیران ہو گئے، کیونکہ چودھری خیر دین اپنی موت نہیں مرا تھا بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا، اور وہ بھی بڑی بے دردی سے۔ چودھری کے سینے کو چاک کر کے اس کا جگر نکال پھینکا گیا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی گئی تھی، چہرے پر چھریوں سے ایسے وار کیے گئے کہ اس کی پہچان کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے چودھری سے کسی نے بھیانک انتقام لیا ہو، مگر فرشتہ صفت انسان کا دشمن کون ہو سکتا تھا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ٹھیک 9 بجے چودھری خیر دین کو سسکیوں کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ پولیس پارٹی کو بھی چودھری کے بیٹوں نے یہی بیان دیا کہ ہمارا یا ہمارے محروم باپ کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا اور ہمیں کسی پر بھی شک نہیں ہے۔ چودھری کے نوکر خاص اشرف کا بیان یہی تھا کہ چودھری صاحب کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ حسب معمول رات کو دودھ دینے گیا تو چودھری صاحب نے تازہ ہوا کے لیے کھڑکی کھول کر رکھنے کو کہا تھا۔ چودھری خیر دین کے بعد ان کا بڑا بیٹا شاہ رخ گاؤں کا بڑا تھا، وہ اپنے باپ کا بالکل متضاد تھا۔ مزاروں کو اور اہل گاؤں کو تنگ کرنا اور بیجا سختی کرنا اس کا معمول تھا، مگر گاؤں والے اس کے ہر ظلم اور ستم کو اس کے باپ کی وجہ سے برداشت کرتے رہتے تھے۔ گاؤں کے چوکیدار کا بیٹا مرتضیٰ بڑا ہی خوبصورت اور جوشیلا نوجوان تھا۔ ایک روز مرتضیٰ اپنے دوستوں سے مل کر گھر واپس آ رہا تھا کہ چودھری کا بیٹا شاہ رخ گاؤں کی لڑکی زیبو کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ زیبو گاؤں کی عزت تھی۔ مرتضیٰ نے غصے میں آ کر شاہ رخ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور کہا، دیکھ چودھری شاہ رخ، ہم گاؤں والے اگر تمہاری عزت کرتے ہیں تو صرف تمہارے باپ کی وجہ سے، مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم گاؤں کی بہن بیٹیوں کو سرے راہ چھیڑو۔ یہ سن کر شاہ رخ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور مرتضیٰ کے ہاتھوں اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا، تمہاری یہ جو
सूरत के नाली का कीड़ा होकर चौधरी शाहरुख के गिरेबान तक पहुँचे। मैं तुम्हें शाहरुख ने अभी ये अपना फिक्रा पूरा भी नहीं किया था कि मुर्तजा ने कहा, चौधरी अगर तुमने आइंदा गाँव की किसी लड़की को गलत निगाह से देखा, याद रखना मैं तुम्हारा खानदान तबाह कर दूंगा। ये कहकर मुर्तजा ज़ेबो को साथ लिए गाँव की जानब रवाना हो गया। 2 दिन बाद चौधरी शाहरुख अपनी हवेली के सेने में मुर्दा पाया गया। पूरी हवेली लोगों से भर गई। शाहरुख के चेहरे पर खराशे ही खराशे थी। इसके नाखून को उधेड़ कर रख दिया गया था। शाहरुख की मौत पर कोई आंख अश्कबार न थी, मगर फिर भी इस जवान मौत का हर किसी को दुख जरूर था। शाहरुख का छोटा भाई शाह ज़ेब भी शहर कॉलेज से भाई की तदफीन के लिए आ गया। शाहरुख की वालिदा पागलों की तरह चीखो पुकार कर रही थी। शाहरुख की तदफीन के बाद पुलिस ने मुर्तजा के घर चक्कर लगाने शुरू कर दिए और गांव के लोगों का भी यही ख्याल था कि शाहरुख के कत्ल में मुर्तजा का हाथ है, क्योंकि इसने 2 रोज कबल शाहरुख को कत्ल करने की धमकियां दी थी। मुर्तजा ने अपनी सफाई भी दी, मगर गांव वाले और चौधरी शाहज़ेब मुर्तजा को कातिल समझते थे। जब मुर्तजा ने देखा कि इसकी जान कहीं से नहीं छूट रही, तो वो रात की तारीखी में गाँव से फरार हो गया। अब गाँव का करता धरता चौधरी शाहज़ेब था, जो अपनी तलीम नामुकम्मल छोड़कर गाँव वापस आ गया था। शाहरुख के मुकाबले में चौधरी शाहज़ेब सुलझा हुआ इंसान था, जो लोगों के दुख दर्द को अपनी तकलीफ तस्वर करता था। वक्त आस्ता आस्ता अपनी मंजिल की जानब रवा था। शाहरुख को फौत हुए 2 माह बीत गए। मुर्तजा की अभी तक कुछ खबर न थी। दिसंबर की एक बर्फ बना देने वाली तारीख रात थी। हर तरफ हो का आलम था। मुर्तजा का बाप यानी गाँव का चौकीदार एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में लालटेन लिए पहरा दे रहा था। कभी कभार कहीं दूर से गिद्धरों और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, और फिर अचानक ही चौकीदार ने रात की सर्द तारीखी में एक साया चौधरी की हवेली की तरफ बढ़ते देखा। चौकीदार ने कहा, रुक जाओ, कौन हो तुम? साया अपनी जगह पर साकन हो गया। चौकीदार ने साये के करीब जाकर लालटेन इसके चेहरे की जानब की, तो चौकीदार का खून पूरे जिस्म में जम गया। इसका वजूद हरकत के काबिल न रहा। जिंदगी में इसने ऐसा बदसूरत चेहरा कभी नहीं देखा था। खौफनाक स्याह चेहरे पर 2 मोटी मोटी आग बरसाती लाल लाल आंखें, नाक कटी हुई और सिर्फ वहाँ 2 सुराख ज़ाहिर थे। बड़े हुए बाल, खून का दांत, भवें ऊपर को चढ़ी हुई, हाथों के नाखून इंतहाई हद तक लंबे लंबे। चौकीदार ने ऐसी डरावनी सूरत आज तक नहीं देखी थी। बदसूरत चेहरे वाले ने अपना हाथ बढ़ाकर चौकीदार को गले से पकड़ा और उठाकर दूर फेंक दिया। दूसरे ही लम्हे वो हवेली में चुदरैन के कमरे में मौजूद था। इसने चुदरैन के मुंह पर हाथ रखकर अपने लंबे लंबे नाखूनों से इसका सीना चीर डाला और बड़ी ही बेदर्दी के साथ इसका दिल निकाल कर दांतों से चबा डाला। अपना काम करने के बाद इसने इर्द गिर्द देखा, फिर लंबे नाखूनों से इसका नाक खींचकर दूर फेंक दिया। तब वो बाहर निकल गया। गांव की गलियां लोगों से भरी हुई थी, जिन्हें चौकीदार ने चला चला कर इकट्ठा कर रखा था। वो बदनुमा सूरज जब गली से निकलने लगा तो इसने अपने पीछे लोगों को भागते हुए देखा। चंद लोगों ने इस पर फायरिंग भी की, मगर वो ऐसा गायब हुआ कि जैसे वो था ही नहीं। लोगों के शोर की आवाज सुनकर चौधरी शाहज़ेब भी गहरी नींद से बेदार हुआ। जब इसने गाँव वालों को अपनी हवेली के गेट पर जमा देखा तो वो इनकी तरफ आ गया। अभी इसने लोगों से बात भी न की थी कि इनका खानदानी नौकर अशरफ चीखता चिल्लाता भागा आ रहा था, मालिक मालिक, किसी ने चुदरैन को कत्ल कर दिया है। चौधरी शाहज़ेब अपनी वालिदा के कमरे में आया तो माँ की लाश देखकर इसके रंगोटे खड़े हो गए। इसकी माँ को भी बिल्कुल उसी तरह कत्ल किया गया था जिस तरह इसके बाप चौधरी खैरुद्दीन को कत्ल किया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि चुदरैन के हाथों की उंगलियां कटी हुई नहीं थी। गाँव वाले हवेली के सेन में जमा थे और सरगोशियों में मसरूफ थे। कोई इस कत्ल को इंतकाम का नाम दे रहा था, कोई मुर्तजा को कातिल समझ रहा था, तो किसी को खानदानी नौकर अशरफ पर शक था कि ऐन कत्ल के वक्त अशरफ को सबसे पहले किस तरह इल्म हो जाता था, क्योंकि अब भी अशरफ ने ही बयान दिया था कि इसने लोगों के शोर की आवाज सुनी तो वो नींद से बेदार हुआ और सीधा वो चुदरैन के कमरे की तरफ गया। चुदरैन के खानदानी कब्रिस्तान में चुदरैन को मनो मिट्टियों के नीचे दफना दिया गया। हवेली में लोगों का तांता बंधा हुआ था। शाहज़ेब से ताज़ियत के लिए लोग आ रहे थे। इन लोगों में चंद ने ये भी कहा, चौधरी साहब, हमें लगता है कि उस कत्ल में भी मुर्तजा का हाथ है। अब हमें इजाजत दें, हम चौकीदार के बेटे को जमीन की तह से भी निकाल लेंगे। मगर शाहज़ेब ने जवाब दिया, मुझे मुर्तजा पर बिल्कुल शक नहीं है। वो मेरे बचपन का दोस्त है। इसकी फितरत में ऐसी उस्तलाना हरकत बिल्कुल नहीं है, और वो वैसे भी चौकीदार चाचा ने जो निशानियाँ बयान की हैं वो मुर्तजा से नहीं मिलती। मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। चौधरियों के यके बाद दिगरे 3 कत्लों ने शाहज़ेब की कमर झुका दी। इसके होठों से मुस्कुराहट बिल्कुल रूठ गई। बारिश का महीना था। लोग कमरों से निकलकर आंगनों में सोने लगे।
इस दौरान मुर्तजा का कोई भी पता न चला कि वो कहाँ है और किस हाल में है। हाँ, सिर्फ एक बार इसका खत चौधरी शाहजेब को मिला था, जिसमें इसने खुद को शाहरुख या चौधराइन के कत्ल में बेगुनाह करार दिया था। वो 23 मार्च की रात थी। पूरा गाँव करारदादे पाकिस्तान की खुशियाँ मना रहा था। हर सौ जश्न का समा था कि गाँव के लड़कों ने हवेली के गेट पर अचानक बदसूरत शक्ल वाला चेहरा देखा और फिर पूरा गाँव लड़कों के शोरो गुल को सुनकर इकट्ठा हो गया। चौधरी शाहजेब अपनी छोटी बहन के साथ परेशान हवेली के आंगन में खड़ा था। दोनों के चेहरे पर खौफ की छाइयाँ थी। चंद लोग हथियार लेकर हवेली के बाहर पहुंच चुके थे। वो बदसूरत वाला हवेला हवेली की छत पर पहुंच चुका था। किसी ने फायरिंग करने की कोशिश की तो शाहजेब ने उसको रोक दिया। अचानक वो हवेला बोला, गाँव वालों सुनो, गाँव के लोगों की सोच के खिलाफ वो आवाज मकरूह या कराहत नहीं थी, बल्कि इंतहाई खूबसूरत और शेरी जनाना आवाज थी। वो दोबारा बोली, सुनो गाँव वालों, मैं ना तो भूत हूँ और ना कोई बदरू और ना ही कोई चुड़ैल हूँ। मैं आप लोगों की तरह इंसान हूँ। मेरे भी कुछ ख्वाब थे, अरमान थे। मेरा ताल्लुक करीबी गाँव के गरीब घराने से था। मैं चौधरी शाहरुख से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो भी मुझे चाहता था, मगर एक रोज उसने मेरी इज्जत तार तार काट दी और मुझे ठुकरा कर चला गया। आप लोग जिस चौधरी खैरदीन की पूजा करते थे, जिसको सब लोग फरिश्ता नुमा इंसान समझते थे, वो चौधरी फरिश्ता नहीं शैतान था। वो दिन की रोशनी में हया और शराफत का लबादा ओढ़ रखता था और रातों की तारीखी में गाँव की बोली वाली लड़कियों को अगवा करके इनसे भयानक खेल खेलता था। हाँ गाँव वालों, आज तक आप लोगों की जो बहनें बेटियां अगवा हुई हैं, वो किसी डाकू ने नहीं बल्कि चौधरी खैरदीन उठवाता था और फिर अपना मकसद निकाल कर उसको भी कत्ल कर देता और जिस नौकर के जरिए उठवाता उससे भी कत्ल कर डालता ताकि पीछे कोई सबूत बाकी न रहे। मैं जब अपना गोहर नियाब लुटा कर चौधरी खैरदीन से इंसाफ मांगने आई तो इसने मुझे रात गुजारने की खातिर कमरा देते हुए कहा, आज रात तुम यहाँ क्याम करो, कल शहर से शाहरुख आ जाएगा तो तुम्हारा फैसला करूंगा। मैं चौधरी साहब के अखलाक से बहुत मुतासर हुई, मगर जो ही रात के 2 बजे चौधरी खैरदीन ने शैतान का लबादा ओढ़कर मुझे इंसाफ दिलाने की बजाय अजाब की सूली पर चढ़ा दिया। जैसे तैसे रात गुजरी, सुबह हुई तो चौधराइन से इंसाफ तलब करने गई, मगर चौधराइन ने मेरे बंधे हुए हाथों और इल्तिजाओं को नजरअंदाज करके मुझ पर बद चलने का इल्जाम लगा दिया और नौकरों के जरिए मुझे कुत्तों के साथ बंधवा दिया। पूरा हफ्ता बगैर कुछ खाए पिए मैं कुत्तों के हमरा बंदी रही और जब एक रोज चौधरी के नौकरों ने कुत्तों को बासी कच्चा गोश्त डाला तो उनमें से एक टुकड़ा मेरे करीब आन गिरा और मैं मुंह के बल दांतों से कुत्तों के साथ कच्चा गोश्त चबाने लगी। पूरा 1 माह 3 कुत्तों के हमरा कच्चा गोश्त खाती रही और अब मेरे मुंह को कच्चे गोश्त और खून की आदत पड़ गई। फिर एक रोज चौधराइन के कहने पर इसके नौकरों ने मुझ पर छुरियों के वार करके कत्ल कर डाला और जंगल में फेंक गए। ये तो मेरी किस्मत थी कि मैं किसी न किसी तरह जिंदा रही और इतना अरसा मैं जंगलों में गारों में रहती रही। जंगल के जानवरों का कच्चा गोश्त मेरी ग़िज़ा बन चुकी थी और इनके चिकन मेरी मरगूब ग़िज़ा बन गए। मरे हुए जानवरों की खालों से मैं अपना लिबास बनाती रही। जब मेरे अंदर इतनी कुव्वत पैदा हो गई कि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं, तो मैंने चौधरी खैरदीन, शाहरुख और चौधराइन को कत्ल करके अपना इंतकाम ले लिया। वैसे तो मैंने कसम उठा रखी थी कि चौधरी खैरदीन के खानदान का एक फर्द भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मगर चौधरी शाहजेब अपने बाप, भाई और माँ से मुख्तलिफ है, गरीबों का हमदर्द और गाँव की इज्जतों का रखवाला है, लिहाजा चौधरी शाहजेब को जिंदा छोड़ रही हूँ। और हाँ, मुर्तजा बेकसूर है, मेरे जाने के बाद वो यहाँ आ जाएगा। मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया क्योंकि मेरी दुश्मनी चौधरियों के खानदान से थी, किसी और से नहीं। आज के बाद तुम सब बेखौफ व खतर जिंदगी बसर कर सकते हो, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। इसके बाद वो साया हवा की मद नजरों से ओझल हो गया। बस्ती के लोग इस साये के पीछे पीछे भागे। फिर बस्ती वालों ने इस साये को पहाड़ी पर चढ़ते देखा और फिर अचानक इस साये ने पहाड़ी की दूसरी जानब छलांग लगा दी। गाँव वाले सब जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भेड़िए, चीते और रिछ की खालों से खौफनाक लिबास पड़ा था और इंसानी आजाद दूर दूर तक फैले हुए थे। और फिर दूसरी सुबह मुर्तजा भी अपने गाँव पहुँच गया। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दरिंदा नुमा इंसानों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन बुराई का अंजाम हमेशा अबरतनाक होता है, जैसे चौधरी और इसकी बीवी बेटे का हुआ। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।